So guys, one thing is certain, that when it comes to reading, these are 5 questions: 1, 2, 3, 4, and 5, correct? And these are the two fill in the blanks that formulate the majority of the portion, that is around 46%. इसका मतलब रफली 90 में से 45 मार्क्स तो आपको रीडिंग ही दे रहा है, करेक्ट? So obviously we have to master it. Yesterday we did some rules and we'll just take 5 to 7 minutes to revise them. Okay, everybody. Rule number 1 says after a and the we need a noun. Okay, after a and the we need a noun. Is that clear? Now I'll ask randomly. इन सिर्फ आपने कोई भी ब्लैंक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. My simple question is which is noun, this or this? Just by looking at it with the reason. Intention. Why? Because it has this. You said some 5 types of nouns. The suffix, not 5 types of nouns. Yes, suffix, yeah. Okay. Ness meant suffix number 3 was what? 2 Shan. and 10. Exactly. This Yeah. is the reason, that is why this is the noun. शिवानी suffix होते हैं Yeah. वर्ड के एंड में लगते हैं, ठीक है? अब जैसे नेस जो मैंने लिखा, सॉफ्टनेस, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, कंक्लूजन, करेक्ट? यस सर। और इसी तरीके से इंटेंशन लास्ट में लिखा हुआ है, तो एंड में जो टी आई ओ एन आ जाता है तो वो नाउन माना जाता है, ठीक है? ओके सर। Okay. Who would tell me which one is noun, specified or taste? Taste, Correct. Why? because you can just plural it. Exactly. And specified is ending with ed verb. ed. That is why it's a verb. Rule number 2 states after the article an we need a, e, I, o, u. We need a word starting with the letter a, e, I, o, u. Okay. Which one is a vowel? Which one is a vowel? Sorry, this is a vowel. An article an. Which word would we be choosing? Identical. 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 Sounds like vowels. Correct. And similarly, P is also not a vowel. Correct? Now, third rule says, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और तुम्हें बहुत बार आएगा. After is, am, are, was, were, has, have, had, been, be, being, इन सबको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है? होते ये भी वर्ब्स हैं बट ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनके बिना सेंटेंस अधूरे होते हैं. नाउ वी रिक्वायर अ वर्ब आफ्टर दैट. ओके, प्रॉपर वर्ब. जब भी आपको is, am, are, was, were, has, have, had, been, be, being ब्लैंक से पहले दिख जाए, we need a verb over here. Are we clear? Just keep on participating and just keep on saying yes or no. Then we'll keep moving Yes, forward. yes. Yes, sir. Okay, next. Next is, this is also very important rule. See, जब भी हम कोई भी verb के बारे में बात करते हैं ना, to go, to eat, to think, आप एक चीज ध्यान दोगे, to के बाद verb की कौन सी फॉर्म लग रही है? First form. First form. This is the rule itself. With to we need verbs first form. Are we clear? Yeah. Yes, sir. Next is whenever the sentence is starting with a blank and you witness a comma after it, you are supposed to include what? A connector. A connector. It could be moreover, it could be furthermore, it could be however, it could be nonetheless, it could be therefore, it could be ergo. Is that clear? Yes, sir. That means Yes, sir. you can include any connector, be it to add, to contrast, or to conclude. Condition being, just after blank there has to be a comma, and if this is absent, then we need verbs first form plus ing, correct? And we call it a gerund. जब भी आगे मैं कभी भी बोलूंगा ना, यहाँ पर verb की first form plus ing लगा दो, हो सकता मैं ये ना बोलूं, क्या बोलूं? Gerund. Insert a gerund. Okay, that itself means verb. Sorry, sir. एक बार और इसका explain करोगे, please? Gerund का मतलब होता है verbs first form plus ing. Okay, sir. This ticket is good.
चलो आए ओके 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 अब देखो अगर यहाँ पर ब्लैंक होती तो मुझे पता यहाँ पर क्या आएगा एक जेरेंड यस और नो Yes. Yes. तो इसके पीछे मैंने क्या लिखा था एनेबलिंग ठीक है कि इन्होंने मुझे हम्म। एनेबल कर दिया इट करेक्ट enabling me to understand the concepts properly now you got it who asked Purnima ना ओके Yes, sir. यही पूछ रहा था ना मैं आपके लिए बता रहा था जी yes sir, yes sir. next is with preposition of we include a noun we include a noun देखो ओके ये याद ही रखना आपने सिंपल रूल और ये रूल आई एक्सपेक्ट कि एवरीबडी वुड रिमेंबर ओके थ्रू आउट देयर लाइव्स adverb comes with Verb. verb correct so how to go about it see सर वर्ब के अलावा एडजेक्टिव्स भी आ सकता है ना एडवर्ब Yes. के साथ क्यों क्यों आएगा okay No, what would you choose can also. no she was dash reading क्या इस वर्ड का सेंस बना रहा है या नहीं Yes. Yes, sir. Yes. why though because I knew that what is this Verb. Verb. then what do I Yeah. need now adverb Adverb. and that ends with Adverb. correct make sense Yeah. no ये वैसे पैसिव वॉइस के लिए यूज होता है बाय रूल ये हम इसको इन डेप्थ नहीं करेंगे बट इसको छोटा सा शॉर्टकट यही है whenever you witness a by after the blank we have to include what verbs third form Up to third form. verbs third form okay like does this make sense Yes, sir. Yes, sir. now this is the logic जब blank आता है उसके आपने देखा ओके बाय लगा हुआ है मैं verb के थर्ड फॉर्म ढूंढूंगा या ढूंढूंगी one second Manjeet Kaur you also attended yesterday's lecture right now you miss it right Yes, sir, but I'm missing. you're missing as in मैं कल लेट हो गई थी क्लास जैसे आज हो गई है ओके ओके जी। कोई बात नहीं मैं रिवाइज ही कर रहा हूँ अभी मैंने कुछ भी नहीं है कल वाले ही रिवाइज कर रहे हैं अभी हम तभी मैंने आपको पूछ लिया कि अभी ऐसा अभी Okay, आपका जी। कुछ छूटा नहीं है तो अभी भी पिकअप करना पेस यहीं से भी ओके ओके नाउन कम्स विद एडजेक्टिव ओके ओके व्हाट इज गर्ल ओवर हियर इट इज अ नाउन और नॉट Noun. Noun. हाउ अबाउट दिस Humble. It's adjective. Adjective. नाउन इट मेक्स सेंस राइट Hmm. सो आपने देखना क्या होता है ब्लैंक के आले द्वाले जब आप गेज कर लोगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बैठा है तब आप शुरू करोगे कि हाँ जी दिस इज व्हाट आई हैव टू पुट दिस इज व्हाट आई हैव टू इंसर्ट दिस हैज टू बी द आइडियोलॉजी ये तो आपको सामने सामने दिया हुआ तो इट बिकम्स इजियर बट एंड सी वन मोर थिंग लेट्स सपोज इफ आई से so what would you choose Careless. Careless. careless correct because that's what Yeah. and rule says right
Yeah. it has to complement this. It has to make sense either by inserting the complementary meaning or opposite one. Correct. अब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे, रूट के साथ क्या सही लगेगा, केयरलेस। और कई बार क्या होता है, Yeah. Aarti, you would have to mute yourself. There is a lot of disturbance from your end. Thank you. Singing. करेक्ट। अब क्यों सिंगिंग है, क्योंकि ये क्या पीछे लगा हुआ है, ING पहले भी है और बाद में भी Dancing. सिमिलर। कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं? हम्म नाउ यू अंडरस्टूड द आइडियोलॉजी एवरीबॉडी। और कई बार तो क्या हो रहा था कि कई बार प्लूरल हो रहा होता है, जैसे कुछ भी वर्ड के साथ एस लगा होता है, तो जैसे लेट्स सपोज देयर वर लॉट ऑफ प्लेसेस एंड डैश। ओके, अब यहाँ पर आप चूज करना हो साइट या फिर साइट्स, क्या चूज करोगे? साइड Sites. बिकॉज ऑफ एस। समझ आया ना? Yeah. कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए आपको, बहुत सिंपल रूल है ये है मोडाल्स, ये बचपन से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड। ओके, सो बेसिकली वी ऑलवेज नीड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। आपने कभी ये सुना है आई कैन डिड दिस? नाउ क्या सुना है हमेशा? I can do this. आई कैन Verbs first form. I can drink, I can eat, I can watch, I'll go. Make sense? Verbs first form always. Why? Because फ्यूचर में वो चीज़ अभी होनी है, हम पास तो जा ही नहीं सकते ना। मेक सेंस? देखो, आई कैन डू दिस अभी किया तो नहीं, आई कुड डू दिस अभी हुआ तो नहीं, आई मे कम अभी आया तो नहीं, ट्रेन माइट कम अभी आई तो नहीं, दे विल आए तो नहीं। मेक सेंस? यस सर। जो चीज़ हुई नहीं है हम पास्ट टेंस कैसे लगा देंगे, लॉजिकली भी अगर हम सोचो तो। ऑल राइट, so today's agenda is, let's solve some blanks. Okay, we simply did some rules, and number one thing, whenever you approach the blanks, number one thing you would be doing is you would be looking at this. Okay, just a thorough read. Okay, just a thorough read. इसके मतलब एकदम खो नहीं जाना, बट जैसे ही आपने एक बार पढ़ लिया, स्टॉट है वाज वाचिंग पार्टी न्यूज़ फॉर बिकॉज सच एज ओके नाउ द ओकम area career program offers on site in-house teaching the course dash by experienced instructors. अब मुझे बाय से पहले क्या लगाना होता है जी? verb third form. थर्ड फॉर्म अब इसमें से थर्ड फॉर्म कौन सी है मेरे पास? स्टार्ट। अब मेरे पास कोई और मुझे दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना। Is dot. अब सिमिलरली अब देखो, अगर मैं इस डॉट का आपको दूसरा लॉजिक भी अगर बताऊं, तो यहाँ पे इज लिखा हुआ, यस मैं कह सकता हूँ ये प्रेजेंट है, यस और नो। और अगर यहाँ पर देखो ऑफर्स, तो ये भी प्रेजेंट ही है या नहीं? डज दैट मेक सेंस? अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी। जिस हिसाब से एक्चुअल में जो आपको चीज़ें देखनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, नज़रिया क्या होना चाहिए। ओके, कॉमा के बाद क्या है? स्टार्टिंग में ब्लैंक एंड देन आउटसोर्सिंग इट, डैश आउटसोर्सिंग इट। इन ऑर्डर टू आंसर दिस वन यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। कह रहा है ओकम एरिया करियर प्रोग्राम ऑफर करता है ऑन साइट इन हाउस टीचिंग, द कोर्स इज टॉट बाय एक्सपीरियंस टीचर्स डैश आउटसोर्सिंग इट। नाउ दिस इज ऑल टुगेदर कॉन्ट्रास्ट। वो कह रहा है कौन पढ़ाता है कोर्स? एक्सपीरियंस टीचर। एंड यहाँ क्या कह रहे हैं? आउटसोर्स। ये दोनों उल्टी बातें हैं या नहीं? कॉन्ट्रास्ट वुड बी डिपिक्टेड बाय व्हाट? Rather than. however Exactly. Rather than. rather than Rather than. Now next, our teachers understand each student's individual learning needs. Dash. Learners receive personalized feedback and support. Now obviously this makes perfect sense, right? Positive and positive. Yes or no?
Yes, sounds present. Now I need something. See, अब ये blank से ही start हो रहा है. So what does the rule say? Verbs first form does. ing. और यहाँ पर नीचे verb देखो. कौन कौन सी verbs हैं आपके पास? एक ing वाली ये है, एक ये है. मतलब ये है और ये है. क्या सूट करता है? Meaning. Meaning. इसका मतलब है meaning. Learners receive what? Personalized feedback Personalized feedback. and support. देखो imparting का मतलब पढ़ाना होता है, ठीक है? Imparting learners receive का तो मतलब ही पाना है, तो दो impart हो नहीं सकते ना, correct? This way you will never miss a class dash any reason. Preposition. For any reason. Correct. For any reason. अब देखो मैंने नीचे क्या करके रखा हुआ है. अब मैंने थोड़ा डिफाइन किए हुए हैं. was teaching ये दोनों verb phrase थे. Imparting एक verb है, meaning एक verb है, correct? And similarly preposition एक verb है, because एक conjunction है, ये phrase है, ये भी phrase है, right? सर जो लास्ट वाला ब्लैंक है फोर आपने उसमें क्या बोला Preposition. वो Preposition. कौन से आपने किसी रूल से बोला नहीं, जो हमने कल रूल ये जब हम करते हैं ना, जब भी कोई ब्लैंक, हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं, एसवीओ रूल से बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. अब जब भी आपको एक अपनी बात कन्वे करनी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेटिव्स होते हैं, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, उसमें ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है? ये उनका ही पार्ट है. अब जैसे दिस वे यू विल नेवर मिस अ क्लास डैश एनी रीजन. किसी भी वजह से के लिए मुझे प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा. ओके ओके सर. Everybody, do you understand the ideology behind solving this? Yes. Okay. Let's try this. But before we move forward, see, I have segregated it. Spend is what? Verb. Use is what? Verb. Consists. Verb. Frightens. Verb. Drives. Verb. Replaced. Verb. Noun is components. Adjective is limited, improved and certain. क्योंकि ये एक्शन है, करेक्ट. ये नाउन है क्योंकि प्लूरल है. ये भी एक्शन है, वर्ब. ओके. Adjective, noun, and this is also a verb. Verb. It could be adjective also, correct? Drives is what? What is drive? Tell me. Verb. Correct. Verb. What is replaced? Adject. Replaced. Adjective. Certain. Verb. Yeah. Certain is what? Adjective. Certain adjective. Now, So how adjective? you tell me why not? Can certain be made plural? No. All good. Yeah. All good. Great engineers have passion to improve life. A burning conviction. Aarti, it's a request to you. Humble request. Please mute yourself. There is a lot of noise. Thank you. If whenever you want to speak, you may unmute yourself. Great engineers have a passion to improve life. Is this positive or not? A burning Yes, conviction sir. that they can make life better for everybody. Engineers need to have a talent for invention and innovation. What does it say? Contrast. But what dash them is the conviction that they can find a better way to do things, a cheaper and more efficient solution to the problems. Even this is positive, correct? But what dash them? But what? Frightens them. Frightens. Okay. Why would it frighten them? When everything is Improve. positive, first of all, it is a collocation. Yeah. Everybody, do you understand the concept of collocation? Understand over here. I have two simple questions. Okay. When we say it is raining heavily, rain क्या वाकई heavy है? When I say strong coffee,
Does it have muscles? When I say pay attention, do you actually pay it? That means though there is no literal sense, they are pairs. Yes or no? इनको collocation बोलते हैं. ठीक है, इनको collocation बोलते हैं. अब Okay. what dash them is the conviction that they can find better way to do things. अब मेरे पास पूरा का पूरा पॉजिटिव है, मैंने सारे जगह प्लस लगाया हुआ, तो मुझे पता नेचर जो होगी ऑप्शन की वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. करेक्ट. What dash them? Drives them. What drives them? What do you mean by drives them? अब एक्चुअल में ड्राइव थोड़ी हो रहा है. Like, yeah, What motivates them? moves them. Yeah. Correct? Yeah. Does it make sense, everybody? The meaning, the logical sense of Yes, sir. yeah. अब जिसने भी फ्राइटन बोला वो ये समझ ले कि पूरा का पूरा ये पॉजिटिव है. ठीक है, तो फ्राइटन मैं कॉन्ट्रास्ट नहीं करूंगा. Now, more efficient solution to problem of human existence on this सॉरी planet. सर. Yeah, हेलो yeah. सर, ड्राइव्स क्या मतलब इसका यहाँ पे? मोटिवेट करना. उनको क्या Okay, मोटिवेट motivate. करता है. ओके, व्हाट ड्राइव्स देम? Yeah. ओके सर, थैंक यू. So, yeah, more efficient to the problems of human existence on this planet of dash resources that we call Earth. My question to you is, after blank, what is the keyword? Resources. And can I say Limited. it is a noun, right? What do I need? An adjective for it, yes or no? Limited. Correct. See, adjectives मेरे पास सिर्फ 3 ही है. या मेरे पास limited है, या improved है, या फिर certain है. और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, the problem is to find cheaper and more efficient solution to problem of human existence on this planet of limited resources. कि efficient का मतलब ही क्या होता है कि कम से कम चीज़ों में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालें. yes or no? That means resources की क्या है, shortage. That means the answer would be limited and it's an adjective. आपके पास जो ऑप्शन थी वो इतनी सारी तो थी नहीं. कितनी ऑप्शंस थी आपके पास? yes or no? Because we already knew resources के पहले क्या आता है जी, सॉरी नाउन के पहले क्या आता है जी, एडजेक्टिव. Oh, sorry. अब एडजेक्टिव हमारे पास कितने थे, 1 2 एंड 3. अब रिसोर्सेज के साथ कौन सा चल रहा था, लिमिटेड रिसोर्सेज, इंप्रूव्ड रिसोर्सेज, या सर्टेन रिसोर्सेज? Certain. Certain can also match it, right? हाउ? Because they are just couple of resources. सर्टेन का मतलब होता है जो पता हो, पक्का पता हो. मखसूस, हाँ, certain, special. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये देखो प्लैनेट ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज का क्या सेंस है यहाँ पे. आपको 2 चीजें पता लगी यहाँ पे. Yeah. देखो, Yeah, sorry. yeah. Next is many of us dash a lot of time. It is also a collocation. A lot of time is what? Spend. Yeah. But my point is, ये बिल्कुल ठीक है, spend बिल्कुल ठीक है, but समझने वाली बात क्या है? Do you actually spend it? Your time? In literal sense? No, right? No, it's collocation. तो collocation. Make sense? आपको collocation के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, collocations क्या होती हैं? Okay. It is easy to find fault with things that can make our life arduous. What do you mean by arduous? And it is a good vocabulary. ठीक है, arduous का मतलब होता है hard. That is difficult. Are we clear? For an engineer, these difficulties can be opportunities. How can this be made to work better? How can that process be made more efficient? How can dash be made more cheaply, more accurately, and more fit for the purpose? ये 3 चीजें हैं, ये 3 जो क्वालिटीज हैं किसको सूटेबल करती हैं? जो चीप बन सकता है, एक्यूरेटली और फिट हो सकता है बढ़िया. How can Components. How can components be made more cheaply, more accurately, and more fit for purpose? Make sense?
Yes, Great sir. engineers are convinced that everything can be dash. Improved. Exactly. Can be improved. Make sense? Because it adheres to the overall tonality. Is the ideology clear? Yes, sir. All right. First one is an idiom. Idiom समझते हो ना? Yes, sir. मुहावरे. Yes. Yeah. Try to find it. वैसे Live up to. correct. And what do you mean by lives up to? यानी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि वो जी रहा है, चल रहा है. No. जैसे let's suppose I expect कि आप 90 लेके आओगे, let's suppose, and you actually got 90, then you lived up to your name. Okay? और आपके जो एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना. expectations पे खरा उतरने को क्या बोलते हैं? To live up to its Yes, sir. name. Okay? Okay. Yeah. The dash after a and the what do we need? Noun. Noun. Okay. Noun. Noun देखो यहाँ पर नीचे कितने हैं आपके पास? Only 3. The dash is derived from. Title. Correct. अब देखो जब आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं और जब सिर्फ 3 ही हैं तो उससे फर्क पड़ता है या नहीं? Yes, sir. बहुत हेल्प हो जाती. Yes, sir. चलो is derived from the Latin word lucere meaning to shine. The artwork 3115 मतलब 3115 lights dash a scale map of stars to shine in the night sky. Okay, so obviously we need a verb, that's fine, but understand present to shine and the artwork 3115 lights dash a scale map of stars that shine in the night sky. Now try to utilize it. Depict. करेक्ट. सी डिपिक्ट आंसर ढूंढना यहाँ पे मुश्किल था. मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आंसर जिसके दिमाग में रिप्रेजेंट भी आ रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट भी हो सकता था और डिपिक्ट भी हो सकता था, दोनों में आपको फर्क बता देता हूँ. whenever you use the word depict, which one is correct? First one. No, second one. ये सबको लगता है Depicted. पहला होगा. क्यों? डिपिक्ट चीज यूज होता है जब आप विजुअली किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो ना, जब आपके सामने कुछ विजुअल चीज है उसके लिए आप क्या यूज करते हो? डिपिक्ट. एंड लुक क्लोजली, व्हाट वुड शाइन इन द नाइट स्काई? Stars. Wouldn't that be visually engaging then? Yes, sir. All right. The 13-foot artwork dashed thousands of classrooms. Represent. No, no. Consists. Okay. अब यहाँ पर दो चीजों में आपको कंफ्यूजन होगी, एक होगा कंसिस्ट और एक होगा कंप्राइजेस. दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है या नहीं? दैट मीन्स इंक्लूड. ऐसे ही है ना? बट Comprises. Like I think. दोनों में फर्क देखो क्या. Whenever you want to use consist, there has to be a preposition of. Of के बिना with कंसिस्ट का consist. कोई भी पॉइंट नहीं, और कंप्राइजेस उस ऑफ की जरूरत नहीं. इज दैट क्लियर?
Yes, sir. Now look at this. Can you spot off? कहाँ गया? One sec. Anywhere? No, right? Yes, So the answer would be, comprises. make sense? Yeah. See, this is AND rule. Try to make sense of it. Verb's first form. Work, communicate से मिलता है. Live. Correct. Live. Exactly. The advent of internet and smart devices has made information dash at our fingertips. Okay. This is a noun, yes or no? Yes, sir. Adjective. We need an adjective. And which one are the adjective? It is this. Accessible. It is this. And there is, out of three, the only one which is making sense is Accessible. 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 अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, कितने थे बस? 3. Yeah. However, this rapid technological progress is not without its challenges. Privacy concerns and the potential for technology to dash social interactions are issues that require careful consideration. To dash social interaction. Weaken. Exactly. To weaken social interaction are issue are required careful consideration क्योंकि to के साथ verb की first form है. Now, despite these concerns, innovation. Sorry. Yeah. Sorry, sir. पिछले blank की please explanation. आप देखो क्या लगता है आपको, क्या आपको लॉजिक नहीं समझ आया इसमें? पढ़ो, try it. After to needs verb first form or not? Yes, sir. तो weaken first form ही तो है. Yes, sir. Okay, okay. अब आपके पास तीन Sir, ऑप्शंस थी. या tell me. sir, I'm sorry to interrupt you, but मुझे हल्का सा यहाँ पे confusion हो रहा है. Like information noun, okay, so accessible, yeah, it makes sense, but according to rule, accessible adjective, Accessible यानी कोई adjective चीज ही तो मुझे है. accessible है, मतलब मुझे कोई चीज accessible है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे verb है ये. आप दो चीजों को इकट्ठे कर रहे हो. Oh God, yeah, इसमें confusion आती है, yeah, accessing. Okay. तो ट्रिक क्या होगी सर इसमें? आपने तो जब कंफ्यूजन भी हो जाती है. कुछ नहीं, कंफ्यूजन में आपने ऐसे करना, जब भी आपने accessible होता है तो ऐसा कोई भी वर्ड है आपने सोचना है इसके साथ क्या मैं नाउन लगा सकती हूँ. हाँ, हाँ, accessible वो तो skills. like it doesn't make sense with noun, तो होगा जैसे कि of course information accessing तो नहीं हो सकता. Of course information accessible, yeah. तो इसका मतलब वो Adjective है. Now, despite adjective these है. concerns, innovations in technology continue to provide solutions to global dash. देखो Challenges. global challenges, क्योंकि global is what? A bigger scale thing and adjective. Adjective हुआ ना global तो. Yes. कभी सुना globals? सुना कभी? No, ठीक है, No. noun नहीं होगा सही. Challenges. As a result, modern technology remain a dash force. अब force एक noun है या नहीं? Correct? Yes, sir. And Yes, forces हो सकता है. Yeah. हमारे पास ये दो ही हैं. Transformative. Correct. क्योंकि नेगेटिव तो होगी नहीं ना. मॉडर्न टेक्नोलॉजी नेगेटिव कैसे हो सकती है? मेक सेंस? Yes, sir. इज द लॉजिक क्लियर? Force negative नहीं हो सकती. हो सकती है, नेगेटिव फोर्स हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बट अब कॉन्टेक्स्ट क्या है पूरे इसका?
मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंज, ये बढ़िया हो गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है इसने, ये फ़ायदा कर दिया, वो फ़ायदा कर दिया। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मैं इनमें नेगेटिव फोर्स बोलूँगा? Yes, sir. No. A peaceful environment plays a crucial role in fostering positive and productive atmosphere for education, where learners are surrounded by a dash environment. अब तुम्हें पता है मेंट क्या है, Noun. तो हमें क्या चाहिए? Adjective. एडजेक्टिव मेरे पास कितने हैं? 1, 2 और 3। Supported. Supportive. वेरी गुड। Supportive environment. Now, which enhances their ability to dash on their studies. 2 के बाद क्या आएगा जी? Verb. First form. Verb की first form. कौन सी है जी? जो स्टडीज के साथ मिलती जुलती है, ऑन देयर स्टडीज, और जो एनहांस की जा सकती है एबिलिटी। Concentrate. करेक्ट। लैक ऑफ एंड रूल क्या कहता है जी? जो पीछे टेंस हो या सेंस चल रहा क्या है हो. मेरे पास? अब देखो Disturbances. Disturbances. Now, furthermore, a calm and respectful dash among classmates. Calm and respectful मैं कह सकता हूँ एडजेक्टिव है? Yes, sir. नाउन क्या होगा? Atmosphere. The noun आएगा. Absolutely. Atmosphere, which is vital for dash development. Development मुझे पता है नाउन है, तो क्या आएगा जी? That's adjective. करेक्ट। क्या है वो? Full. Personal. No. No, Fruitful. Yeah. Supportive. Fruitful. hang on. Fruitful. Make sense? Adjective. एक सेकंड। मोड कोऑपरेशन नो पर्सनल डेवलपमेंट है, क्योंकि ये सारी पर्सनल डेवलपमेंट के ट्रेट्स है ना। पर्सनल डेवलपमेंट का ये मत समझो कि ये पर्सनल है, ओवरऑल डेवलपमेंट के सोच में चलना प्लीज। क्लियर? Can you एक बार आप फिर से बोल सकते हैं लास्ट वाली ब्लैंक? देखो, 2 तरीके की डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। कह रहे हैं काम एंड रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर अमंग क्लासमेट्स प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट व्हिच इज वाइटल फॉर। ये जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, कंसंट्रेशन में बढ़ना, सेफ और फील सिक्योर करना, किस चीज़ की डेवलपमेंट है? It's for आप अगर self, कोलोकेशन देखो तो बच्चों की डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट में काउंट होती है। Yeah. ओके, ट्राई फर्स्ट वन। ओके, मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ, शायद आप अगर आपने ये नहीं लिखा हुआ, जब ये देयर होता ना, जब भी देयर है इसके आगे ब्लैंक है तो नाउन आता है वहाँ पे हमेशा। ठीक है, लिख लो इसको कहीं पे। तो 99% ऑफ द टाइम। Preservation. Easy. Yeah. ओके, सिग्निफिकेंस क्या है जी? हैंस। Noun. Adjective आएगा. Adjective. मेरे पास 3 है यार, रिलीजियस है, ट्रेडिशनल है, या फिर एलैबोरेट। Religious. Traditional. Traditional इसको significance. समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। वैसे तो इसका आंसर Context. रिलीजियस है। क्यों? आगे देखो। फॉर इंस्टेंस सम केव पेंटिंग्स आर बिलीव्ड टू हैव क्रिएटेड फॉर रिचुअलिस्टिक पर्पसेस। रिचुअल्स से किसका लेन देन है जी? Yeah. Religious. Religion. Convey stories and the word which complements stories. Folklores. करेक्ट, एक ही बात है। Hmm. The use of natural pigments and dash techniques. टेक्निक्स क्या है जी? No. Sir, folklore का मतलब क्या होता है? Traditional techniques. पुरानी स्टोरीज होते हैं, जो पुराने जो इंडिजिनस लोग सुनाते हैं, फोकलोर होते हैं। Oh, yeah. Okay. And pigments जैसे वो नहीं and है traditional. जो हम लोहड़ी पे गाता सुंदर मुंदर ये हो, फोकलोर ही
सर यहाँ ट्रेडिशनल आएगा Yeah. एंड ट्रेडिशनल टेक्निक बिकॉज ऊपर रिलीजन आ चुका है तो उससे तरह की उससे कोई भी चीज अलग आनी बात चाहिए। ये है कि नेचुरल पिगमेंट है। देखो जो पुरानी चीज एंशिएंट लिखा हुआ है यहाँ पे सारे ट्रेडिशनल। इनकी सकाफत ट्रेडिशन। क्लियर? सर आपने ये जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं सारी, तो ये मैंने सारे रूल्स वगैरह तो वहाँ देखे हुए, तो एग्जांपल्स आपने अभी इंक्लूड किए हैं वहाँ पे ड्राइव में? ये मैं अभी कुछ देर पहले बना रहा था क्लास से कुछ देर हाँ तो क्योंकि ये मैंने देखी नहीं थी एग्जांपल्स वहाँ। ओके, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे पूछनी थी इससे रिलेटेड कि ये जितने भी हैं ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली मैं देख चुकी हूँ। तो ये अब लिखा हुआ होता है कि जैसे वहाँ पे पोर्टल में कि इतनी दफ़ा आए हुए हैं, तो क्या पीटीए रिपीट करता रहता है ना? वो जो बैंक पोर्टल होता है उनका, उसी में से ही आते रहते हैं, नए तो बाहर से कहीं नहीं आएंगे ना सर? यस। हाँ, तो अगर हम इन सब की मीडियम है, ये हार्ड क्वेश्चंस हैं और ये सब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये फिर हमें फायदा होगा उनमें से कैसे? रक्षी प्रैक्टिस करो हम्म रूल्स की, ठीक है? फिर चाहे जो मर्जी आए, ये एटीट्यूड रखो, एटीट्यूड आपका गलत है। आप सोचो मुझे जो मर्जी दे दो मैं कर लूंगी बस। हाँ, वो तो ठीक है सर, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि फिर कोई भी कहीं से भी आए तो अगर रूल्स आपको अच्छे से आते हैं, सही। चलो। लेकिन मैं ऐसी क्यूरियस थी कि ये सब उसी बैंक पूल में से आता रहता है, रिपीट दैट इज ट्रू, उसमें गलत नहीं। ओके, गॉट, थैंक्स। The lute is plucked string instrument that dash a central role in European music from the late Middle Ages. अब मुझे बताओ ये कौन से टाइम की बात कर रहा है जी? Slave. Ancient है ना? पास्ट की, हाँ। अब जब भी होता है ना जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं who, which, that, उनके बाद verb लगता है, ठीक है? ये भी लिख लो, उनके बाद verb लगता एक बार फिर से बोलोगे? है। जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं ना, रिलेटिव क्लॉजेस Who? Yeah. Who? जो होते हैं which, Okay. that, ठीक है? ये 3 रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं। जब भी मैं इसके आगे कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो मैं 99% ऑफ द टाइम वर्ब से शुरू करता हूँ। Okay. अब अगर इसको मैं अप्रोच कर रहा होता इस ब्लैंक को, तो मैंने देखा, ये टाइम देखा सबसे पहले मैंने, क्या था? मिडिल एजेस, ठीक है? मुझे पता है कि मैंने वर्ब देनी है, बट मुझे वर्ब अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे कौन सी चाहिए? Third, यस, तो मैं पास्ट की, हाँ। जब मैंने इन सब में से देखा तो मेरे को 2 मिले, या तो ये मिला या फिर changed. Yeah. अब दैट प्लेड अ सेंट्रल रोल, करेक्ट। हाँ। तो वो मुझे इजीली समझ आ गया यार, यहाँ तो प्लेड ही आएगा, जस्ट बिकॉज आई वाज एबल टू गेज द टाइम। करेक्ट? यही अगर टुडे होता, यही अगर आज का लिखा होता, कहीं पे भी यहाँ पे अगर टुडे आ जाता तो मैं प्रेजेंट टेंस डालता। यहीं अगर कोई फैक्ट आ जाता, कोई भी फैक्ट आ जाता, तो भी मैं प्रेजेंट ही डालता। यस सर, प्ले होता था। Its pear-shaped body and fretted neck dash it a versatile instrument. Okay, 1 second, कुछ थोड़ा सा कुछ ट्रिकी है, तुम देखते हैं, रुको, तो इजी है। अब जैसे लेट्स सपोज ब्लैंक के बाद आर है, ठीक है? अब मुझे पता है इसके पीछे जो भी होगा प्लूरल होगा, ऑब्वियस ही बात है या नहीं? तभी आर लगाते हैं। इन सब में से प्लूरल देखो क्या है? एक्सपेक्टेशंस, प्लान्स, टास्क्स। अब देखो, आप ऑटोमेट कर क्या सकते हो? क्या एक्सेप्शंस ऑटोमेट हो सकती हैं? क्या टास्क्स ऑटोमेट हो सकते हैं? टास्क्स, Tasks are automated. या अब ओके, आई थिंक आई मेड दिस many only. चलो देन ट्राई टू कंप्लीट दिस ऑन योर ओन, दिस वन। Next answer would be what? Partnership. एक्सपेक्टेशंस। तो ग्रांड के साथ देखो क्या हो सकता है। ग्रांड के साथ ना एक्सपेक्टेशन आएगा ना पार्टनरशिप आएगी। Plans. प्लान्स होंगे ना, ग्रांड तो प्लान्स होते हैं, कोलोकेशन। नेक्स्ट,
और वैसे भी Partnership. एडजेक्टिव और नाउन वाला लॉजिक लगाया था ना सबने। Mm. नेक्स्ट, विद क्या करते हो आप किसी के साथ? इस टेक्नोलॉजी के साथ आपने क्या की? Partnership. Partnership. करेक्ट, Partnership. पार्टनरशिप। Yeah. सर एक मिनट, आपने जो ग्रेड का बताया वो तो बन रहा है सेंस के ग्रेड प्लेन्स, लेकिन आपने एक रूल भी बताया, क्या था ये रूल? ग्रेड प्लेन्स। प्लान्स ना, कोलोकेशन है। हाँ तो कोलोकेशन है, इसके अलावा तो कोई रूल नहीं होगा ना? क्यों नहीं है? ग्रैंड एडजेक्टिव है तो मुझे नाउन चाहिए। एक मिनट, ग्रैंड, Yeah. हाँ एस नहीं लग सकता, ग्रैंड एडजेक्टिव बड़ा, ठीक है। प्लान्स नाउन्स है, ठीक है सर, उस तरह भी हो रहा है, सही। ओके Clear? Okay. Any queries up until now? Anybody? Any query? सर मुझे रीडिंग के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, उसका पूछना था कि हर्षी वो तो इतनी उसकी वो नहीं है। पूछ लो फिर भी, क्या है आपका क्वेश्चन, पूछ लो। हाँ सर, नहीं बस वो असल में आपकी जब ये स्लाइड्स स्टार्ट हुई थी ना, उसके ऊपर एक छोटा से नोशंस या लाइंस लिखी हुई थी, तो उसमें ये था कि अगर आपको श्योर हो तो आप करें, वरना उसको ना करें, नेगेटिव मार्किंग। तो वो किस चीज के लिए थी, वो मुझे पूछना था। हमने बात की थी एमसीक्यूज के लिए, कल भी परसों भी आएगा। नहीं, अभी जो आपने स्लाइड स्टार्ट की ना टुडे प्रेजेंटेशन में, तो सबसे पहले स्लाइड में सबसे ऊपर था, तो वो मुझे था कि किस चीज की बात कर रहे हैं। आई डोंट रिमेम्बर अभी कौन सी स्लाइड है, बट चलो एनी व्हिच वेज, हाँ वो है, अनलेस यू आर श्योर, वो तो नहीं करना हाँ चाहिए उसमें लेकिन लिखा था, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप श्योर नहीं हो तो नहीं करो, जी। वो आपने